Diversity and Discrimination. Part 2. Dear students, in our previous video, we read about diversity, discrimination, prejudice and its statements. Today, we will read and discuss about creating stereotypes and inequality and discrimination. So now we are starting our topics. Here is our chapter 2, diversity and discrimination, and we are now starting our second part. Creating stereotypes. All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or a girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. Students, हम में से लगभग सभी लोग भी जो हैं जेंडर डिफरेंस से अच्छी तरह से परिचित हैं, यानी जेंडर डिफरेंस को हम अच्छी तरह से जानते हैं. इसका क्या मीन्स होता है कि कोई लड़का है या लड़की. आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कहा गया होगा यू आर बोर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल, कि तुम एक लड़की के रूप में जन्मी हो या तुम एक लड़के के रूप में जन्मी हो. इट इज़ ए गिवन. वॉट इज़ देयर टू थिंक अबाउट. इसके बारे में क्या सोचा जाए. लेट्स सी इफ दिस इज द केस. आओ देखें अगर ये कोई केस है. अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज एप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन. दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, they are physically strong, they are naughty, they are good at dance and painting, they don't cry, they are rowdy, they are good at sports, they are good at cooking, they are emotional. Here you can watch the gender difference or discrimination according to gender or stingy view according to gender. Now we will arrange these statements. Now we will arrange these statements according to gender sections. They are well behaved. We put it in section A. It means girls. They are soft spoken and gentle. Section A, girls. They are physically strong. Section B, boys. They are naughty. Section B, boys. They are good at dance and painting. Section A, girls. They don't cry. Section B, boys. They are rowdy. Section B, boys. They are good at sports. Section B, boys. They are good at cooking. Section A, girls. They are emotional. Section A, girls. If we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy." Boys are brave, they don't cry. As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. He also believes that crying is a sign of weakness, so even though boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in
In pain, as they grow older, boys learn or teach themselves do not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. अगर हम एक स्टेटमेंट लेते हैं इसमें से कि दे डोंट क्राई, कि वे रोते नहीं हैं, तो आप सभी जानते हैं कि ये एक क्वालिटी है जो जनरली जो है बॉयज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, इट मीन्स जुड़ी होती है। एज ए बेबी और चिल्ड्रन, जब बच्चे छोटे होते हैं और जो बॉयज़ होते हैं जब वो गिर जाते हैं या वो हर्ट कर लेते हैं अपने आप को, तो उनके पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स हमेशा उनको जो है दिलासा या सांत्वना देते हुए हमेशा ये कहते हैं, डोंट क्राई, यू आर ए बॉय, रो मत, तुम एक लड़के हो और लड़के बहुत बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वे रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रन ग्रू अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई। शुरू से ही जब से वो बच्चे बढ़ना शुरू करते हैं, यानी बॉयज़ बढ़ना शुरू होते हैं, उनके दिमाग में एक जो बात सेटअप हो जाती है कि उन्हें रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक लड़का या लड़के हैं। बॉयज़ जो हैं क्राइम को फील करके भी वो चुप हो जाते हैं, या फिर ऐसा कहने से वो चुप हो जाते हैं। इसके अलावा लड़का जो बॉयज़ जो होते हैं वो खुद सोचते हैं कि क्राइम यानी रोना जो है वो वीकनेस का साइन यानी कमजोरी का संकेत होता है। तो भी इसीलिए जब उनके कभी लग भी जाती हैं, या बॉयज़ और गर्ल्स हैं समटाइम्स जब वो रोना चाहते हैं, कभी कभी जब वो रोना चाहते हैं, स्पेशली जब वो गुस्सा हो या फिर वो तकलीफ़ में हो, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और वो सीखते जाते हैं अपने आप को किस तरह से वो अपने आप को सिखाते जाते हैं कि उन्हें रोना नहीं है। अगर एक ग्रोन बेबी है वो रोता है तो उसको लगता है कि अगर वो रोएगा तो दूसरे लोग हैं उसको टीज़ करेंगे या फिर उसका मजाक बनाएंगे। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरों के सामने ऐसा करता है कि वो रोता नहीं है। इस तरह की शेमफुल पोजीशन से बचने के लिए ये वो वे हैं जिनमें बॉयज़ जो हैं उनकी वो जो हैं वो बिल्कुल लड़के होते हैं, लड़कियां बिल्कुल लड़कियों की तरह होती हैं। ये जो स्टेट्समेंट्स हैं जो हमने सुने, ये कंस्टेंटली हम इनको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग, और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। हमें बिल्कुल जैसे कि हमारे लिए जो आगे स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें उन्हीं की तरह बिहेव करना चाहिए। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज। हम सभी जो हैं लड़के और लड़कियों को एक इमेज के अंदर जो है सोसाइटी ने फिट किया हुआ है जो कि हमारे पास है। You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. आप दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं कि ये सॉफ्ट और जेंटल होती हैं, ये वेल बिहेव्ड होते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये जो है गर्ल्स के ऊपर हम इसको अप्लाइड कर सकते हैं या किया गया है। डू गर्ल्स possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? आप जो हैं गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं, उनमें ये जो क्वालिटीज़ होती है वो बर्थ के से आती हैं या फिर वो दूसरों के बिहेवियर को देख के इस तरह की जो है क्वालिटीज़ जो हैं वो सीख जाती हैं। आप क्या सोचते हैं उन गर्ल्स के बारे में जो कि सॉफ्ट और जेंटल नहीं होती हैं
और उन गर्ल्स के बारे में जो कि नॉटी होती हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. They are stingy and generous people everywhere. There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. जब हम किसी व्यक्ति या लोगों की धारणा जो है उसको एक ही खांचे में फिट कर लेते हैं, उसकी इमेज को, तो हम जो है स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं। स्टीरियोटाइप क्रिएट इट मीन्स रूढ़िवादी बन जाते हैं, या किसी के बारे में पूर्वाग्रह पर जो विश्वास होते हैं उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। हमारी अवधारणा ऐसी बन जाती है कि उसको अच्छा होने के बावजूद, उसमें क्वालिटी होने के बावजूद हम उसकी क्वालिटियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और एक फिक्स जो इमेज होती है उसी इमेज में हम उसको देखना चाहते हैं। वो लोग जो कि बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री से, रिलीजन से, सेक्स से, रेस से या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, उनको स्टिंगी बोला जाता है। स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम उनमें भी होते हैं। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स, और ये लोग स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़िवादिता को क्रिएट करते हैं या फिर मानते हैं। स्टिंगी और जेंडरस पीपल एवरीवेयर, आप जानते हैं कि स्टिंगी इट मीन्स कंजूस, और जो जेंडरस पीपल होते हैं वो हर जगह होते हैं, हर कंट्री में, हर धर्म में, हर ग्रुप में, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मेल हो या फिर फीमेल हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक, और बिल्कुल ये क्योंकि कुछ लोग होते हैं दैट इज़ नॉट फेयर टू थिंक, वो फेयर नहीं होते हैं किसी के प्रति सोचने में, दैट एवरी वन विल बी द सेम, वो ये सोचने में सक्षम नहीं होते हैं कि हर जो लोग होते हैं वो समान होते हैं। इसीलिए जो है स्टीरियोटाइप कंसेप्ट जो है क्रिएट हो जाता है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. Stereotype की जो concept होती है वो हमें वो हमें रोकती है कि हम जो है किसी भी यूनिक जो पर्सन है या इंडिविजुअल पर्सन है उसको जो उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ या फिर उसके स्किल्स के साथ देखने से हमें मना करती है, जो कि डिफरेंट होती है दूसरों। स्टीरियोटाइप के जो लोग हैं वो जो हैं दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। वो बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को सिर्फ एक ही पैटर्न या टाइप से जो है उनको सोचते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। स्टीरियोटाइप के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम पे इस तरह होते हैं कि दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, हमें ऐसी चीज़ें करने से वो जो है प्रिवेंट करते हैं यानी रोकते हैं। दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। इसी तरह से जो हैं वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, तो हम जो है दूसरों के प्रति अच्छा बन सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, अनइक्वलिटी and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudices
or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रीजुडिस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि लोग जो हैं वो सिर्फ पूर्ण रूप से किसी न किसी एक ग्रुप को या किसी सोसाइटी को या किसी स्पेशल रिलीजन, सेक्स, जेंडर या फिर जो कलर के आधार पर जो है नापसंद करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग अपने प्रीजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादिता और अपनी नापसंदगी के अनुसार काम करते हैं। अगर आप जो हैं कुछ ऐसे लोगों को जो है नीचे डालना चाहते हैं, अगर आप जो हैं इस तरह से जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ से अलग हटना चाहते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जो है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कि जैसे जॉब करना या फिर उनको जो है सर्टेन किसी स्पेशल ऐसे ही नेबरहुड में रहने से रोकना, या फिर उनको जो है वाटर रिसोर्सेज से वाटर लेने से रोकना, या फिर सेम हैंड पंप और जो है वेल से जो आप उनको वाटर लेने से रोकते हैं, और उनको जो है सेम कप्स और ग्लासेस में जिनमें दूसरे लोगों ने पिया था उनसे ड्रिंक करने के लिए जो है मना करते हैं चाय या पानी को, तब आप उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। Discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. For example, they belonged to different religion. This is an aspect